Good morning, student of class 5. I am your computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to discuss the chapter number 7, which is internet services. Okay, and in this video I am going to discuss the Excel short question and answer. So let's start. And this is the syllabus for second term examination, and I have already completed chapter number 2, chapter number 3. Okay, and today I am going to discuss chapter number 7, which is internet services. Okay, but all of you have to do one thing. Please read each and every chapter very carefully. Okay, because our first term exam second term examination is mainly based on MCQ. तो आप लोगों को क्या करना होगा, हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा. ओके, MCQ क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर हुआ है उस पे से भी आ सकता है और एक्सेल से भी आ सकता है, इसीलिए आप लोगों को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा. ओके, and this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss all 5 topics in this video. Okay, so now move on to the main topic. First is information searching is a very popular service on the internet. Okay, Google is the most popular search engine. So हम लोग कभी भी कुछ भी अगर सर्च करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी अगर हम लोग को हो, हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि गूगल पेज को ओपन करते हैं. ओके, और बेसिकली हम लोग गूगल जो सर्च इंजन है उसमें ही हम लोग अपना क्वेरी हम लोग डाल के जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं. ओके, सो दैट्स वाई गूगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन. ओके, एंड हियर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गूगल. First is Google was founded by Larry Page and Sergey Brin. Okay, while they were PhD student and Stanford University. जो गूगल को जिन लोगों ने क्रिएट किया था वो था लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन. ओके, नेक्स्ट इज गूगल फर्स्ट ऑफिस वाज ए रेंटेड गैरेज. ओके, रेंटेड गैरेज. सो गूगल का जो फर्स्ट ऑफिस था वो एक गैरेज में था. ओके, नेक्स्ट इज Google co-founders Larry and Sergey originally named the Google as Backrub. Okay. Next is the name Google is actually derived from the mathematical term Google, which is basically 1 with 100 zero following it. Next is the first ever Google Doodle was Burning Man stick figure. Okay. So these are the few interesting facts about Google. Next is the internet is a worldwide system interconnected networks of a computer. It consists of many networks connected to one another from a global network. All the computers connected to the internet can communicate and share information. हम लोग को पता है कि हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और इंटरनेट से क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग आसानी से कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, वो कैसे होता है, क्योंकि वो जो इंटरनेट होता है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है ऑफ ऑल कंप्यूटर्स. ओके, एंड it consists of many network connected one another from a global network. ओके, वो जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो ग्लोबली कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से. ओके, इसलिए हम लोग कहीं का भी इंफॉर्मेशन हम लोग ऑटोमेटिकली इंटरनेट से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. ओके, ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन. जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं. ओके, द यूजेस ऑफ इंटरनेट हैज इंक्रीज सो मच इन द पास्ट फ्यू ईयर्स that has become the important part of our day-to-day life. From a small network set up by US Department of Defense to connect 4 computers at different cities, the internet has come a long way. In this chapter we will learn how to connect to internet, uses of internet service. Okay, so basically सबसे पहले क्या हुआ था कि यूएस जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, यूएस डिपार्टमेंट में क्या डिफेंस डिपार्टमेंट ने जो 4 कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट किया था डिफरेंट सिटी में. ओके, यही था पहले सबसे पहले जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स था. ओके, सो फर्स्ट इज हाउ टू कनेक्ट
internet, connecting to the internet. Okay, we need to connect an ISP. ISP means internet service provider. Okay, internet service provider, to get an internet connection. ISP is a company that provides internet access to its customer. That means जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी सिम हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, ये सब भी एक आईएसपी है, होता है। क्यों? ये सब क्या करते हैं, हम लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। ओके, सो आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हम लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है। ओके, एंड आईएसपी कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस इट to its customer. Let's learn about different types of internet connection that ISP may provide. So first is dial-up connection. Okay, dial-up connection. Dial-up connection, internet connection allows to connecting to the internet through a standard telephone line. Okay, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये है टेलीफोन लाइन। ओके, ये है टेलीफोन लाइन। हम लोग क्या करते हैं कि डायल अप कनेक्शन में जो इंटरनेट कनेक्शन रहता है वो एक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के ज़रिए ही रहता है। ओके, द कंप्यूटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू ए डायल ए स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी टू एक्सेस द इंटरनेट। ओके, जो आईएसपीज होता है वो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक नंबर हम लोग को देता है, उसी को डायल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द टेलीफोन लाइन इज कनेक्टेड टू ए मोडेम। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो टेलीफोन लाइन है वो कहाँ से कनेक्टेड है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ओके, सॉरी, राउटर से कनेक्टेड है। ओके, राउटर और मोडेम which in turn is connected to the computer. When using this type of connection, user cannot make or receive phone calls while they are using their phone to access the internet. हम लोग अगर डायल अप कनेक्शन को यूज़ करेंगे तो हम लोग एक प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि हम लोग कोई भी कॉल को रिसीव भी नहीं कर सकते और कॉल कर भी नहीं सकते। ओके, दिस इज जनरली द स्लोएस्ट टाइप ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन एंड इट इज़ नॉट ऑफन यूज्ड दिस डेज। जो ये डायल अप कनेक्शन है, अभी क्या होता है कि ये जो डायल अप कनेक्शन है उतना यूज़ नहीं होता है। ओके, और ये बहुत ही स्लो स्पीड देता है। पीपल नाउ यूज़ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, DSL connection and cable connection then offer better internet speed. Okay, so first is DSL connection, digital subscriber line. Okay, DSL stands for digital subscriber line. User get a high speed bandwidth connection using the existing telephone network. In this type of connection, a user can still use the phone to make calls even when the phone is being used to connect the internet. DLS connection में क्या होता है कि डायल अप कनेक्शन में तो हम लोग इंटरनेट को यूज़ करने के टाइम हम लोग कॉल भी नहीं कर सकते थे और कॉल को रिसीव भी नहीं कर सकते। लेकिन डीएलएस कनेक्शन में क्या हो सकता है, हम लोग आसानी से कोई भी कॉल कर सकते हैं और हम लोग उसको रिसीव भी कर सकते हैं। ओके, जब हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तब भी। ओके, और जो डीएलएस कनेक्शन है होता है वो क्या होता है, हाई स्पीड बैंडविड्थ कनेक्शन होता है। ओके, जो इसमें जो इंटरनेट का स्पीड होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। नेक्स्ट इज केबल कनेक्शन इंटरनेट। केबल इंटरनेट कनेक्शन यूजेस द एग्जिस्टिंग केबल TV lines to provide high-speed internet. This connection can be faster than dial-up and DSL, but available only areas where cable TV network is present. Okay, हम लोग को पता होगा, हम लोग जो नॉर्मली लोकल ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम ही क्या होता है कि केबल नेटवर्क से ही आता है। जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में कोई भी चैनल देखते हैं वो भी केबल नेटवर्क है। उन्हीं लोगों से, उन्हीं ऑपरेटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको ले सकते हैं। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि केबल इंटरनेट कनेक्शन बोलते हैं। ओके, और ये जो कनेक्शन है ये भी बहुत ही फास्ट है, फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट इज सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन। In this type of connection, internet connection is provided through the satellite orbiting in the earth. It does not use cable or phone lines. Rather, a user requires install a satellite dish. Okay, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि हम लोग अभी क्या देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिश का यूज़ करते हैं केबल को देखने के लिए। ओके, हम लोग जो टीवी देखते हैं
उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिश यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम लोग सैटेलाइट के ज़रिए, वो भी सैटेलाइट से ही डायरेक्ट आप लोगों के घर में पिक्चर, कोई भी चैनल हो गया आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके लिए हम लोग के घर पे छत के ऊपर कोई भी एक डिश लगा होता है। ओके, उसी तरह से सिमिलरली आप लोग भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक डिश लगा हुआ है और ये है सैटेलाइट। और इसमें एक चीज़ है कि इट डज नॉट यूज़ द केबल और फ़ोन लाइन्स। इसमें कोई भी केबल लाइन और फ़ोन लाइन यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। खाली आप लोगों को क्या करना होता है कि एक डिश को इंस्टॉल करना होता है। कोई भी आईएसपी का हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, जियो हो सकता है, जो कि हम लोग अभी देख पा रहे होंगे, जियो फाइबर होता है, एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ यूज़फुल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट एरियाज। ये क्या होता है कि जहाँ पे रिमोट एरियाज मतलब जो एकदम गांव है, ओके, वहाँ पे टेलीफोन लाइन नहीं पहुँचता, कोई भी जो एयरटेल वोडाफोन टाइप का जो सर्विस प्रोवाइडर वो नहीं जा सकता, उसी एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिश इंस्टॉल करके, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का डिश इंस्टॉल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, हाउएवर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन कैन नॉट ऑफर स्पीड एज हाई एज डीएलएस और केबल कनेक्शन। इससे क्या होता है कि जो हम लोग ये डिश यूज़ करके जो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करेंगे, वो डीएलएस डीएसएल और केबल कनेक्शन से हाई स्पीड नहीं देता। ओके, नेक्स्ट इज वायरलेस कनेक्शंस। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट इज एस्टेब्लिश थ्रू रेडियो वेव्स। जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, वायरलेस मीन्स हम लोगों को कोई भी टेलीफोन लाइन का ज़रूरत नहीं है, कोई भी हम लोग केबल लाइन का यूज़ नहीं करते। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस बोलते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, द इंटरनेट कैन बी एक्सेस्ड वायरलेस enabled devices such as laptop, smartphones or similar mobile devices. This type of connection include accessing the internet through Wi-Fi hotspot or wireless LAN. We might have seen wireless hotspot in many public places such as airport, cafe and hotels. Okay, हम लोग अब देख पा रहे होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी फ्री एक्सेस वाईफाई लगा होता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन में हो गया, कोई भी होटल्स में हो गया। ओके, वाईफाई के ज़रिए हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू रेडियो वेव्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन। Mobile internet involves using cellular technology to provide the internet access on the mobile device, such as smartphone. Various providers such as Airtel, Vodafone, and other different plans to provide the internet access along with the voice data they on their 3G 4G network. Okay, मोबाइल नेटवर्क तो आप लोगों को सबको पता होगा। दीज आर द ISP सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सेलुलर जो नेटवर्क है उसको यूज़ करके हम लोग आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विस। फर्स्ट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन के बारे में मैंने पहले ही बोला। One of the important advantage of internet is that it allows us to get information from anywhere and anytime. There is a huge amount of information available on the internet covering a wide range of topics such as news, books, products, science, cricket, star, galaxies and healthcare. This information is stored in the form of text, pictures, videos and on thousands of web server. Okay. Search engine on the internet helps us to search information on any subject that we needed. In the information that we require is specified in the form of keywords. The search results are usually displayed as list of the linked pages where keywords were found. Some of the popular search engine Google, Yahoo, Search, Bing, Alvista, etc. Okay. सो सर्च इंजन मैंने पहले ही बोला कि हम लोग को अगर कोई भी क्वेरीज, हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि सर्च इंजन में लिखते हैं। ओके, दिस इज़ द सर्च इंजन। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग के सामने बहुत सारा इस टाइप का सजेशन लिखा के आता है। ओके, हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सर्च इंजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल is electronic mail. Okay, email is one of the most widely used methods for exchanging messages through internet. Email is fast and convenient and has revolutionized
द वे इन विच कम्युनिकेशन हैज़ हैपन दिस डेज। ओके, ईमेल मीन्स हम लोग मोबाइल फ़ोन में जैसे टेक्स्ट मैसेज करते हैं उसी तरह से ईमेल में हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। ओके, in order to use the email service we need to have an email account. There are many websites such as Gmail, Yahoo Mail, Reddit Mail that offers free email accounts. We can create email accounts by filling the registration form wherein we are required to create an email address and password. हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि ईमेल अपना ईमेल अकाउंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कौन सा साइट प्रोवाइड करता है? गूगल प्रोवाइड करता है जीमेल के जरिए, याहू प्रोवाइड करता है और रेडिट मेल प्रोवाइड करता है। ओके, हम लोग आसानी से इनमें से कोई भी एक के ऊपर हम लोग अपना खुद का ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। Every email account has a unique email address. An email address consists of a user name and a domain name of the server, which provides the email facility. The username and the domain name are separated by symbol @ ओके, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि कोई भी ईमेल एड्रेस में एक यूज़र नेम होता है और एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम मीन्स gmail.com एक डोमेन नेम हो गया, yahoo.com एक डोमेन नेम हो गया और रेडिट एक डोमेन नेम हो गया। ओके, और यूज़र नेम कौन सा होता है? किसी का भी नाम हो गया, मान लिया राम, ram@gmail.com। ओके, सो राम हो गया उस पर्सन का नेम हो गया जो कि यूज़र नेम हो गया। ओके, इन द ईमेल एड्रेस anandgupta@gmail.com, दैट मीन्स आनंद गुप्ता क्या हो गया, यहाँ पे यूज़र नेम हो गया, उसके बाद @ देके gmail.com हो गया। gmail.com क्या हो गया कि डोमेन नेम हो गया। ओके, नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग साइट्स। A social networking site is used to build online communication. People who are share common interest. People uses this site almost every day for chatting, playing games, and connecting with friends and family members. These are the number of social networking sites available, such as Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. आप लोग देखोगे कि घर में जो एल्डर्स है वो लोग सोशल नेटवर्किंग साइट कभी ना कभी यूज़ किए होंगे। ओके, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, एक्सेट्रा, दीज आर द सोशल नेटवर्किंग साइट। ओके, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, social networking sites are great tools to find old friends and stay in touch with them. A growing number of celebrities, such as movies actors and sportsmen persons, have taken up blogging and tweeting. They are using these social networking sites for connecting with their fans. Okay, so हम लोग आसानी से उन लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि हम लोगों का आइडल रहता है। जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्समैन हो गया, हम लोग देख सकते हैं वो उन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ पे कौन सा ब्लॉग किया है। ओके, एक्सेट्रा। सो सोशल नेटवर्किंग साइट से हम लोग आसानी से एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conferencing allows people at two or more locations communicate and interact with one and another through the audio and video mode. It makes a use a computer network to send audio video data from one place to another place. Video conferencing has become a popular way to conduct meetings in office, educational training programs for students and healthcare conference for medical staff. People at geographically separate locations can see and talk to each other using microphones, cameras, speakers and TV और एक कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोगों को पता होगा वीडियो कॉल कैसा होता है। हम लोग मान लिया हम लोग इंडिया में हैं और कोई ऑस्ट्रेलिया में हो गया हो, न्यूयॉर्क में हो गया हो, कहीं पे भी बैठा हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल से हम लोग उन लोगों से बात कर सकते हैं। ओके, वीडियो कॉल के जरिए हम लोग उन लोगों से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग को एक माइक्रोफोन चाहिए, कैमरा चाहिए, स्पीकर चाहिए। हम लोग टीवी और कंप्यूटर के ज़रिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट हु प्रोवाइड्स वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि एनी टाइम एनी मीटिंग हो गया, वीसी नाउ हो गया। इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट इज चैट।
Real-time textual communication between two user through the computer is called chat. Okay, chatting has become a popular way to people to communicate other with others. Okay, chatting can be used to send instant messages such as Yahoo Messenger, Google Hangouts allows us to chat people in our friend list. WhatsApp Messenger is commonly used nowadays. People use WhatsApp to send text messages, document image, audio, video files and make calls. Video chatting through Skype, Apple FaceTime is also popular nowadays. Okay, so chat आप लोगों को तो पता होगा कि हम लोग आसानी से हम लोग का जो सोशल नेटवर्क साइट यूज़ करके हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं कि किसी को भी हम लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि चैट बोलते हैं। ओके, वाया इंटरनेट। ओके, उसके लिए हम लोग कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं? व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, वीडियो कॉल होता है यहाँ पे, फेस टाइम हो गया एप्पल के लिए जो कि वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ऑनलाइन लर्निंग। Online learning or learning through the internet helps is important knowledge by overcoming the limitation of time, distance, and resource. Many websites such as www.edx.org offers course from uh, renowned university with a certificate on successful completing of course. Some websites such as W3 Schools and these are the few sites which offers free tutorials on topics related to the technology. Okay, ऑनलाइन लर्निंग आप लोगों को पता होगा कि हम लोग घर पे बैठ के हम लोग कोई भी वेबसाइट में जो कि ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके हम लोग अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का कोर्स का जो कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। Nowadays, people have started shopping through the internet, buying and selling goods and services through the internet called e-commerce. It includes online shopping, online banking, trading and stock and bonds, इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स बुकिंग एंड मेनी मोर। आप लोगों ने शायद देखा होगा जैसे कि ये अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या होता है, ई कॉमर्स साइट्स है जहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ओके, एक्सेट्रा। The popularity of e-commerce is growing. It is convenient to compare different products and buy them from the comfort of their homes. Another reason of growing the popularity of e-commerce is improved security of online transaction. हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग कोई भी चीज़ कहीं कोई भी साइट से कोई भी ऑनलाइन साइट से हम लोग खरीदते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पे कर देते हैं। पे मतलब पैसा दे देते हैं। ओके, वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत ही अभी क्या हो रहा है, बहुत ही सिक्योर हो गया है। ओके, कोई भी खतरा नहीं है हम लोगों का, जो पैसा हो गया कुछ भी हो गया वो चोरी होने का। ओके, सो इसीलिए इसीलिए क्या होता है कि अभी क्या होता है कि जो ई कॉमर्स साइट है वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज नेडिक्यूटीज। ओके, we all follow set of rules or norms while behaving the communicating in the real world. These rules of etiquette are just important by cyberspace as they are in the real world. Etiquette is the combination of word network and equities. It is defined as the set of rules to be followed while communicating over the internet such as using ईमेल, सोशल मीडिया, चैटिंग। ओके, सो मेनली एडिक्यूटिस क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स होता है। हम लोग तो ऑनलाइन में बैठ के चैट करते हैं। ओके, कहीं किसी के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग का शेयर कर सकते हैं। ओके, उसके लिए कुछ रूल्स है, हम लोग को वो मस्ट फॉलो करना ही होता है। ओके, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। ओके, फर्स्ट जो रूल्स है, बी पोलाइट एंड डू नॉट यूज ऑफेंसिव एंड अब्यूजिव लैंग्वेज। वी शुड चूज आवर वर्ड्स केयरफुली इंश्योरिंग दैट वी डू नॉट हर्ट एंड सेंटिमेंट्स और फीलिंग टू अदर्स। ओके, सो हम लोग जब भी ऑनलाइन में बैठ के कोई इंटरनेट में बैठ के कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हों, कोई भी चीज़ हम लोग किसी के साथ बात कर रहे हैं तो हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो अदर हैंड साइड में है उन लोगों का सेंटिमेंट और उन लोगों को हर्ट ना करें कोई भी वर्बल वर्ड से। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी। You should not read messages, mails, etc. of their without taking their permission. Pictures and messages of their others should not be circulated without their permission. हम लोग जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी और दूसरे का हम लोग ईमेल्स, चैट ये सब नहीं पढ़ेंगे। ओके,
और विदाउट देयर परमिशन हम लोग उन लोगों का जो पिक्चर्स हो गया, वीडियोस हो गया, वो ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट हम लोग शेयर नहीं करेंगे। ओके। Do not spread rumors or spam messages. We must carefully verify all facts before posting anything about somebody. Okay. हम लोगों को कहीं पे भी कुछ भी फेक न्यूज़ नहीं फैलाना है। ओके। पहले तो हम लोग को जस्टिफाई करना होगा कि वो रियल है या फेक है, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। ओके। Do not plagiarize. There are copyright issues involved with the content on their internet. We must carefully seek adult guidance while using internet. We must always give the site's name in the reference list if we have to use the content available on the site for some project work. Okay. कॉपीराइट इशू मीन्स क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई भी चीज़ हम लोग प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी पिक्चर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, हम लोग किसी का भी उठा के कोई नहीं नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए उसको कॉपीराइट बोला जाता है। ओके। हम लोग अगर उसको यूज़ करेंगे तो जहाँ से लिया है उसका नेम हम लोग को वहाँ पे डालना होता है। ओके। नहीं तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। नेक्स्ट इज email etiquettes. Okay. There are some important points mentioned on the figure that to be kept in mind before sending the email. In the last version of Gmail, we can undo and sending of a mail within few seconds if we have sent by it mistake. Okay. हम लोग अगर किसी को भी कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं, लेकिन बाय मिस्टेकली अगर हम लोगों ने किसी को मेल सेंड कर दिया है तो जो अंडू ऑप्शन रहता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाय मिस्टेकली जो मेल हम लोगों ने सेंड किया है उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। ओके। सोशल नेटवर्किंग। ओके। we must be careful while using a social networking site. Okay. Following are some etiquettes that can followed while posting any messages on social networking site. Post a message that are brief and concise. Be polite and respect other points of view. Exercise caution while posting another tagging photos. Do not write in capital letters. Do not post uh, and react to wrong comments. Limit limit of the limit the amount of personal information shared online. The more information we post, the easier it is for the others that information to break into our accounts, access our data and commit crimes. Okay. Be selective in choosing your friends online. Do not accept every friend request to you get. People often create fake profiles to become your friend and gain access to personal information. Okay. So these are the few rules and points all of you have to remember. Okay. All of you have to remember while using the social networking sites. So these are the few points we have to remember. Okay. एक्सेस कशन व्हाइल पोस्टिंग एंड टैगिंग फोटोज। हम लोगों को कोई किसी को भी फोटो या कुछ भी टैग करने से पहले देख लेना है कि किसको हम लोग टैग कर रहे हैं। डू नॉट राइट द कैपिटल लेटर्स। ओके। हम लोग कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। ओके। डू नॉट पोस्ट और रिएक्ट टू रॉन्ग कमेंट्स। हम लोग कोई भी चीज़ के ऊपर कोई भी रॉन्ग कमेंट नहीं करेंगे। ओके। लिमिट ऑफ द अमाउंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर्ड ऑनलाइन। हम लोग अपना जितना कम हो सके उतना ही कम इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग उसी को शेयर करेंगे। ओके। और सोशल नेटवर्किंग साइट में हम लोग क्या करेंगे कि जितना हम जिन पीपल को हम लोग जानते हैं उन्हीं लोगों का जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसी को एक्सेप्ट करेंगे। ओके। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। सो फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। which out of the following provides slowest internet connectivity? So option number C is the correct answer, dial up connection. Okay. Next is which of the following allows the user device to connect the internet using cellular technology 3G or 4G? Mobile internet connection is the correct answer. Next is which of the following does not belong to the same category? Facebook, LinkedIn, Instagram. These all three are social networking site. Okay. So Google is the correct answer. Next is the internet service that allows people at two or more location communicate and interact with each other through audio video call is called video conferencing.
Next is fill in the blanks. Wireless internet connection using Wi-Fi hotspot enable connectivity to the internet through radio waves. Okay. Next is search engine. On the internet helps to search and find information on any subject that we needed. Next is number 3, buying and selling goods services through the internet is called e-commerce. Number 4 is social networking are the great tool to find old friends and stay in touch with them. Next is netiquette is defined as a set of rules followed while communicating over the internet. Okay. Next is cross the wrong one out. Okay. First is Facebook is a popular search engine, so this is wrong. Okay. We always need a wired connection to connect a device in the internet. Okay, so this is statement is also incorrect. We should not type in capital letters while chatting. Okay, this statement is right. The subject line of email should clearly convey the purpose of email. This statement is right. WhatsApp is commonly used to chat with people. This statement is also right. Okay, online learning lets us overcome the constraint of a time and distance, so this statement is also right. Okay, so I hope that all of you understand today's topic, but आप लोगों को मैंने पहले ही बोला है कि अच्छी तरह से हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। ओके, समझना होगा, तभी जाके आप लोग जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आएगा उसका आंसर कर पाओगे। ओके, so today I am ending my discussion here and best of luck for your second term examination. Okay, till then take care, goodbye and thank you.